آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکرین پر QR کوڈ اسکین کریں، یہ ہماری ایپ پر بھی مل جائے گا۔ آج ہم رومیو پہلا باب اس کی 21ویں آیت پر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے گہرائی میں جانا۔ یہ آیت اس بارے میں بات کرتی ہے کہ خدا سے دور کیسے جانا ہے، اور پادری آپ کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے نزدیک کیسے جانا ہے۔ جیسا کہ بائبل کہتی ہے، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خدا کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں ایک نئی سیریز شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس کا عنوان تقریباً 10 منٹ پہلے رکھا ہے۔ اچھا، تو اس کا نام ہے گہرائی میں جانا۔ تو گہرائی میں جانا زبور نمبر 42 7ویں آیت میں زبور نویس نے لکھا ہے اور کہا، گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ اب خدا کی گہرائی آپ کے اندر کی گہرائیوں کو پکارتی ہے۔ امثال 20واں باب اس کی 27ویں آیت میں یہ لکھا ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ لہٰذا جب خدا آپ کو پکارتا ہے، خدا آپ سے بات کرتا ہے اور خدا آپ پر کچھ ظاہر کرتا ہے، تو وہ آپ کے سر سے بات نہیں کرتا، کیونکہ خدا سر نہیں ہے۔ یوحنا 4 باب میں یسوع نے کہا، خدا روح ہے، خدا روح ہے۔ تھیسلونیکیوں 5ویں باب کی 23ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ایک روح ہیں۔ لہٰذا جب خدا آپ سے بات کرتا ہے، وہ آپ کو واضح کرتا ہے، وہ آپ کو روشن کرتا ہے، وہ آپ کی روح میں یہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم گہرائی میں جانے کے بارے میں بات کریں گے کہ پرانے عہد نامے میں ہوسیہ بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو۔ تو ہم اپنی افتادہ زمین میں ہل چلانے کی بات کریں گے، ہم خداوند کے طالب ہونے کی بات کریں گے۔ یسایہ نبی نے کہا، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو۔ لہٰذا ہم ترک کرنے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم صرف اپنے طریقوں کو ترک کرنے کی بات نہیں کریں گے جو خدا کے خلاف ہیں، ہمارے خیالات جو خدا کے خلاف ہیں، بلکہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم ان کو کیسے اور کس طرح بدل سکتے ہیں۔ لیکن سپرنگ بورڈ کے متن کے لیے ہم رومیو کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 21ویں آیت کو لیں گے۔ تو لکھا ہے، حالانکہ وہ خدا کو جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں الحاد کی پوری دنیا جس کا آج ہم تجربہ کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز جو واقعی سکھائی گئی ہے۔ آپ کسی بھی قدیم معاشرے میں جائیں اور تمام معاشرے، تمام ثقافتیں تسلیم کرتی ہیں کہ ایک خدا تھا، ایک الوہیت تھی۔ خدا نے ہر شخص کے اندر یہ علم ڈال دیا ہے کہ خدا ہے، وہ موجود ہے۔ رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اس آیت کے مطابق 4 اقدام ایسے ہیں جو خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ غور کریں، سب سے پہلے لکھا ہے، انہوں نے اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کی۔ ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا قدم لکھا ہے، اور نہ ہی انہوں نے شکر گزاری کی، وہ باطل خیالات میں پڑ گئے، ان کے خیالات نے لفظی طور پر ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا یہی ہے کہ ان کے مرکبے ان کے خلاف کام کر رہے ہیں بجائے ان کے لیے کام کریں۔ چوتھا، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اب اگر آپ اس کو الٹا دیکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا، مزید گہرا ہوتے ہوئے پائیں گے۔ اگر آپ وہی 4 قدم رکھتے ہیں جو کسی کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، تو آپ ان قدموں کو پلٹ کر خدا کی گہرائی میں اور گہرا جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ خدا کی تمجید کریں۔ دوسرا، آپ شکر گزاری کریں۔ تیسرا، آپ خیالات یا مراقبے کی طاقت کو پہچانیں اور خدا کے کلام پر غور کریں کہ وہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ اور اب چوتھا قدم، اچھا دل رکھیں۔ اور آپ ایک اچھا دل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یسوع نے فرمایا کہ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا۔ اب یسوع آپ کے دل کی بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے آپ اسے یا تو اچھا بنا سکتے ہیں یا برا بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر پہلی چیز جو انہوں نے نہیں کی، جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ خدا کی تمجید کرنا ہے۔ انہوں نے نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے، اور انہوں نے اسے خدا کے طور پر اس کی تمجید
नहीं की। तो खुदा की तमजीद करने का क्या मतलब है? वैसे आप इसे लुगत में देखें तो सिर्फ ये लिखा होगा कि शानदार बनाना या उसका एहतराम करना, जैसा कि इससे बहुत मदद मिलेगी। हाँ, आप जानते हैं कि ये वाकई मदद नहीं करता। तो हम खुदा की तमजीद कैसे कर सकते हैं? पेश करने का मतलब है कदर करना, इनाम देना, ताज़ीम करना, इज्जत करना, कदर करना और इनाम देना है। तो हमें खुदा की तमजीद करने की ज़रूरत है। अब कोई कहता है कि मैं ये कैसे करूं? अच्छी तरह से ये समझें कि खुदा आपको अपने कलाम के ज़रिए से और अपनी रूह से हम पर जाहिर करता है, और ये हम पर खुदा के कलाम के ज़रिए जाहिर होता है, खुदा की रूह से कि वो अपने आप को हम पर जाहिर करता है। तो लिहाजा हमें खुदा की इज्जत करने के लिए, खुदा की तमजीद करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें उसके कलाम की कदर, इनाम और ताज़ीम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के कलाम के ज़रिए खुदा की रूह से जाहिर करता है। तो ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत कहती है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर खुदा अपने कलाम की ताज़ीम नहीं करता तो वो खुदा नहीं रहेगा। अगर वो अपने कलाम की ताज़ीम नहीं करता तो वो खुदा नहीं रहेगा। उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। यिर्मयाह पहले बाब की 12वीं आयत में खुदा कहता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। यसू ने मत्ती 24वें बाब में कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे। उसने कहा, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ज़बूर 89 34वीं आयत, मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। और जब पौलुस रसूल थेसलनीकियों की कलीसिया से बात कर रहा है, वो कहता है, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। तो उसने कहा, जब हम आपके पास खुदा का कलाम लेकर आए तो आपने पहचान लिया कि ये आदमी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये खुदा आपसे बात कर रहा है, ये खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम। लिहाजा मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं कि खुदा के कलाम की कदर कैसे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इब्रानियों 10वें बाब की 25वीं आयत लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। 20 साल पहले एक शख्स को बाकायदा चर्च का रुकन तब समझा जाता था जब वो हर हफ्ते चर्च आता था। आज 4 हफ्तों में से एक दिन चर्च आते हैं। एक दिन पूरे हफ्ते में या 4 हफ्तों में एक दिन चर्च आते हैं। एक दिन। अब वो अपने आप को उनके बराबर मसीह के पाबंद समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। एक और सादा मिसाल मलाकी 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में दी गई है। लिखा है कि पूरी दयाकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह ना रहे। और मैंने मसीहियों से बात की है कि जो कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे दयाकी देनी चाहिए, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ या मैं वो हासिल करना चाहता हूँ। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम खुदा के कलाम से ज़्यादा अपनी ख्वाहिश की कदर करते हैं। मैं आपको कुछ अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ, और मैं इमसाल 24वें बाब उसकी 27वीं आयत से पढ़ूंगा। इसके लिए एक मतन के तौर पर लिखा है, अपना काम बाहर तैयार कर और उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले, और उसके बाद अपना घर बना। ठीक है? तो बाइबल कहती है नहीं, ये एक ज़रई माशरे में था, और ये कहा गया है सबसे पहले ये कहा गया है अपना बाग लगाएं, काकिस्तान लगाएं, किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार हो जाएं जो बाद में आपकी देखभाल करेगी, फिर आपके घर की देखभाल करेगी।
क्या आप जानते हैं आज हम अपने माशरे में क्या करते हैं? हम अपने ख्वाबों का घर बनाते हैं और उसकी कीमत अदा करने में 30 साल लग जाते हैं, और पहले हम अपने खेत का ख्याल नहीं करते। हम खेत की देखभाल के लिए कभी जाते ही नहीं। मैं पिछले 2 हफ्तों से एक मजमून पढ़ रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद वस्त अमरीका के बारे में एक बात हो रही थी। उन्होंने कितना अलग किया था, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ थी, बहुत ही अफसोसनाक। तो मुझे अपने दादा याद आ गए। अब वो एक किसान थे। हाँ, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। मेरी उम्र शायद 10, शायद 11 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल थी। और उन्होंने कहा, अब तुम यही करते हो। उन्होंने कहा, पहले 10% तुम हमेशा खुदा को दो। अब अगला 10% वो कहते हैं कि इसे तुम अपने पास रखो और तुम इसके साथ कुछ करो, ठीक है? तुम और बुनियादी तौर पर वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं तुम इसकी सरमायाकारी करो। वो कहता है फिर अब 80% रहता है। अब मसला ये है कि हमारे माशरे में आज ज़्यादातर लोग 110% पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें सब कुछ मिलता है, उन्हें जो कुछ मिलता है वो खर्च कर देते हैं। इसके अलावा मज़ीद 10% कर्ज लेते हैं। इस तरह आप हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे। आप 10 और 10 80 के असूल पर चलते हैं। अब सुनो, आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर कोई फीसद चाहता है, हर कोई फीसद पर जी रहा है। कुछ लोग 100% पर जी रहे हैं, कुछ लोग 90% पर जी रहे हैं, कुछ लोग 110% पर जी रहे हैं, कुछ लोग 80 पर जी रहे हैं, और कुछ लोग 70 पर जी रहे हैं, कुछ लोग 40 पर जी रहे हैं, और कुछ लोग 50 पर जी रहे हैं। वो लोग जो 50% पर जी रहे हैं, आप उन्हें अमीर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सरमायाकारी की है। सरमायाकारी तो की है, लेकिन अक्सर यहाँ तक कि बात जब बहुत बुनियादी की हो, पहली चीज़ जो बाइबल हमें सिखाती है वो है खुदा की इज्जत करना। क्योंकि जब पहले हिस्से से हम खुदा की ताज़ीम करते हैं तो बाकी का पूरा हिस्सा मुबारक हो जाता है। मैं कहता हूँ वो लोग जिनके पास खुदा की 90% नेमत है उनसे ज़्यादा आगे जाते हैं जिनके पास खुदा की 100% नेमत है। हमेशा आगे जाते हैं। जब आप खुदा को पहले 10वें के साथ रखते हैं तो खुदा बाकी के 90% को पाक करता है या बरकत देता है। अब 2 तीमुथियुस 3 बाब उसकी 16वीं आयत, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में। मेरा मतलब है हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं वो ये भी नहीं मानते कि कोई सच्चाई है, तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। अब सवाल यह है कि हम खुदा के कलाम को क्या अहमियत देते हैं? हम खुदा के कलाम को क्या अहमियत देते हैं? क्या हम ये कहकर खुदा की तमजीद करते हैं कि खुदा मैं तेरे कलाम को अपना नंबर 1 मयार समझता हूँ, इसी के साथ मैं जीऊँगा? बार्नर के तहकीकी ग्रुप, एक मसीही तहकीकी ग्रुप का कहना है कि आज अमेरिका में 9% मसीहियों का बाइबल का आलमी नजरिया है। 9% मसीही सकाफत, दोस्तों, एहसासात में मेरे से ज़्यादा खुदा के कलाम की कद्र करते हैं। 9% मसीही। लेकिन खुदा की सही गहराई में जाने का पहला कदम खुदा की कद्र करना, उसके कलाम की कद्र करना, खुदा की तमजीद करना, उसके कलाम की तमजीद करना। ज़बूर नवीस ने ज़बूर 119 की 128वीं आयत में कहा है, उसने कहा, इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूँ और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तो ज़बूर नवीस क्या कह रहा है? वो हमसे ये कह रहा है कि मैं तेरे कलाम को देखता हूँ और तू हर चीज़ के बारे में दुरुस्त है। ठीक है, तू शादी के बारे में दुरुस्त है, तू माफ़ी के बारे में दुरुस्त है, तू बच्चों की परवरिश के बारे में दुरुस्त है, तू मेरे काम के बारे में दुरुस्त है, और तू पैसे के बारे में दुरुस्त है। तू हर एक मौजू के बारे में दुरुस्त है जिससे तेरा वास्ता पड़ता है। वैसे तो खुदा के कलाम का हर एक मौजू से वास्ता पड़ता है, लेकिन अक्सर सकाफत और मेरे दोस्त, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, लेकिन ये जान लें, शैतान का निशाना खुदा का कलाम है। आप पैदाइश की किताब के 3 बाब पर वापस जाएं। सबसे पहली बात जो उसने हव्वा से कही थी वो ये थी, क्या खुदा ने कहा
नहीं नहीं, तुम नहीं। ओ हाँ, खुदा ने कहा लेकिन तुम मरोगी नहीं। वो खुदा के कलाम को चुराने की कोशिश करता है। मरकस 4 बाब में लिखा है, यस्सु बीज बोने वाले की तमसील के बारे में बात कर रहा था और किस तरह खुदा की बादशाही का वो बीज लोगों के दिलों में बोया जाता है जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फेलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आप जानते हैं, मैं ये कहूँगा शायद आप वो शख्स नहीं हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ आज हम में से बहुत से लोग गिरते हैं और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। हम दूसरी चीज़ों को खुदा के कलाम से ज़्यादा अहमियत देते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो ये बेफल हो जाता है। हमें खुदा की तमजीद इस तरह करनी चाहिए कि हम उसके कलाम को हर दूसरी चीज़ से ज़्यादा अहमियत दें। खुदा की गहराई में जाने का पहला कदम उसकी तमजीद करना या उसकी इज्जत करना, उसके कलाम को वज़न देना है। और फिर हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसके बारे में हमें बताते हैं नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदार। हम में से सिर्फ 9% ऐसे हैं जिनके पास वो बाइबल की दुनिया है करते हैं। आप जानते हैं कि मैंने किसी से कहा, मैंने कहा बाइबल कहती है, आप जानते हैं? उन्होंने कहा ओपरा ने कहा। मुझे इस बात की परवाह नहीं ओपरा ने क्या कहा। ओपरा खुदा नहीं है, ठीक है, लेकिन अक्सर आप कहते हैं बाइबल कहती है। और वो सकाफत मेरे दोस्त, मेरे एहसासात, मेरी ख्वाहिश की तरह हैं। लेकिन जब हम खुदा की तमजीद करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो हम दूसरे लोगों के ख्यालात की कदर नहीं करते। हम अपनी सकाफत की कदर नहीं करते। हम अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात की कदर नहीं करते। आप खुदा के कलाम की कदर ना करके अपनी फतह, अपना सुकून, अपनी खुशी और खुदा की नेमत को खो सकते हैं। हम किसी और चीज़ को उस ओहदे पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दे सकते, हरगिज़ नहीं। यीशु ने यह कहा, वो कहता है अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है जिस तरह खुदा से हम प्यार करते हैं और उसकी कदर करते हैं, उसके मुकाबले में आपको नफरत करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें अपने वालिदैन से बढ़कर खुदा की इज़्ज़त और मोहब्बत करने की ज़रूरत है। मुझे इस तरह कहने दो, जितना मैं जैनी से प्यार और उसकी कदर करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं खुदा से प्यार और उसके कलाम की कदर करता हूँ। वो मुझसे ज़्यादा खुदा से प्यार करती है और खुदा के कलाम की उतनी ही कदर भी करती है और उसके ऐसा करने से मैं खुश हूँ। इब्रानियों 12वें बाब में यह लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। यूनानी लफ्ज़ का असल में तर्जमा किया जा सकता है शर्म की तौहीन करना। लिहाजा यीशु लोगों की सोचों की तौहीन कर रहा था। उसका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठा किया गया, छोड़ दिया गया, धोखा दिया गया। उसने मसलूब होने का दर्द सहा। उसने उन सब चीज़ों की तौहीन की क्योंकि उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की कदर ज़्यादा की। ठीक है, पौलुस रसूल ने इसे इस तरह से कहा, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह यीशु को हासिल करूँ। अब सब चीज़ों का नुकसान अपने नस्ब, अपनी तालीम, अपनी साख, अपने माल, अपनी आज़ादी पर गौर कर रहा था। वो तमाम चीज़ें उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं इनकी कदर नहीं करता, मैं इनको कूड़ा समझता हूँ। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, जिसकी मैं कदर करता हूँ, खुदा की मर्जी को पूरा करना और जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है उसे पूरा करना। ये खुदा की तमजीद करना है। उसने कहा मैं उनको कूड़ा समझता हूँ। और वैसे जब उसने ये लिखा तो वो जेल में था। तुम जानते हो वो सबसे क्या कह रहा है, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो, बार बार कहता हूँ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी पर खुदा और उसके कलाम को
और खुदा के बुलाए जाने की कदर की। उसने उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की कदर नहीं की। उस मकाम तक जहां उसने कहा कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा। उसने कहा मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिसमें रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा मैं सिर्फ जन्नत का मुंतज़िर हूं। उसने कहा हर चीज़ जो यहाँ नीचे है मैं नापसंद करता हूं। लोग ऐसी बातें कहते हैं जैसे मैं जानता हूं कि खुदा चाहता है कि मैं दयकी दूं, माफ़ करूं और अपने अकीदे को बांटूं, चर्च में रहूं, रज़ाकाराना तौर पर काम करूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि और भी चीज़ें हैं जिनकी हम खुदा की मर्ज़ी से ज़्यादा कदर करते हैं। मैंने हकीकत में लोगों को ये कहते सुना है कि मैं जानता हूं मुझे चर्च आना चाहिए, लेकिन मेरा ख़ानदान दूसरे चर्च में जाता है और वो नाराज़ हो जाएंगे। क्या आप अपने ख़ानदान की राय को उससे ज़्यादा अहमियत देते हैं जो आप जानते हैं कि खुदा आपसे करवाना चाहता है? देखो, हमें सबसे पहले खुदा की कदर करनी चाहिए। इस तरह आप खुदा की तमजीद करते हैं, उसे रिश्तों और पहचान और ख़ानदान और कैरियर और कबूलियत और अमलाक से बालातर करके हमें सबसे बढ़कर खुदा की कदर करनी चाहिए। हमें अपनी हर एक चीज़ से बढ़कर खुदा की कदर करनी चाहिए। दाऊद ने इस तरह कहा, उसने कहा तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। उसने कहा मैं पैसे को देखता हूँ। उसने कहा और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरी मोहब्बत के मुकाबले में जो मैं तुझसे करता हूँ, और मैं तुझे इन तमाम पैसों के हसूल से ज़्यादा इज्जत दूंगा जो ये दुनिया मुझे पेश कर सकती है। उसने कहा तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। आप जानते हो वो खुदा की तमजीद कर रहा है, खुदा की तमजीद। पौलुस ने रोमियो 11वें बाब में कहा, उसने कहा मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ। उसने कहा मैं जितनी बढ़ाई कर सकता हूँ करता हूँ। मैं खुदा की बादशाही की तामीर के लिए जितनी तमजीद कर सकता हूँ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुने, ये वही है जो पौलुस ने कहा। मैं इसका हवाला देने जा रहा हूँ। उसने कहा क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। और अब वो कहता है हल्की सी मुसीबत, उसके पास मेरी परेशानियाँ नहीं थी। मैं आपको उसकी चंद परेशानियाँ बताता हूँ, ठीक है? कोड़े खाने में हद से ज़्यादा बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे। वैसे उन्होंने आपकी जूती उतार दी और आपके पाँव को सलाखों से मारा, यहाँ तक कि 3 बार हड्डियाँ तोड़ दी। 3 बार, एक बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफ़र में दरियाओं के खतरों में, डाकों के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि आपकी मुसीबतें पौलुस से ज़्यादा हैं, उसकी तरह खौफनाक है? मेरा मतलब है वो जेल में था, उसे मारा पीटा गया, संसार किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप शायद जानते हैं उसने ऐसा क्या कहा, हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत। आप कहते हैं हाँ, लेकिन मैं 30 साल से उस बुरी शादी में हूं। यह दम भर की, यह सिर्फ दम भर की है। आप अब्दियत को देखते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें दम भर की हैं। हमें खुदा के कलाम का एहतराम करने की ज़रूरत है। जब हम उसके कलाम की कदर करते हैं तो उसके कलाम की बड़ाई करते हैं। लफ्ज़ी तौर पर बाइबल हमें बताती है कि खुदा की चीज़ों में गहराई में जाने का यह पहला कदम है। यह तस्लीम किया गया है कि खुदा का कलाम आपसे बात करता है। ये आपके लिए खुदा का कलाम है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी है। और जो कुछ भी हो रहा है हम इससे ज़्यादा कदर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ खौफनाक चीज़ों से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिससे पौलुस गुजरा या यीशु गुजरा था। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने कदर नहीं की, उसने किसी चीज़ की कदर नहीं की जिससे उसको गुजरना पड़ा।
और पौलुस ने कहा, हम जिस चीज से भी गुजर रहे हैं ये अब्दियत के मुकाबले में दम भर के लिए है, और ये हम में काम कर रहा है जलाल का एक बहुत ज्यादा और अब्दी वजन है, खुदा और उसके कलाम की कदर करना। अगर आप नहीं जानते हैं कि आज आप खुदा के साथ ठीक हैं, आप कहते हैं कि मैं सही होना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ अपना सर झुकाएं और अपने दिल से ये दुआ मांगें। आप कहें, ऐ खुदावन, मैं यकीन करता हूँ कि यीशु सलीब पर मर गया, मुझे यकीन है उसके खून ने मेरे गुनाहों की कीमत अदा की, मुझे यकीन है वो दोबारा जी उठा, मैं उसे अपना सारा दिल और अपनी सारी ज़िंदगी देता हूँ, मैं हर रोज़ उसके लिए जीऊँगा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मेरी दुआ सुनी है कि तेरे खून ने मेरे गुनाहों को धो दिया, कि मेरा माजी ख़त्म हुआ, मैं तेरा बेटा हूँ आज और हमेशा के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं अगर आपने ये दुआ दिल से मांगी है तो खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है, आप खुदा के नज़दीक मुआफ़ और दुरुस्त हैं। अब आपने बादशाही में पहला कदम रखा है, लेकिन हम चाहते हैं आप रूहानी तौर पर तरक्की करते रहें। मैंने नकात से भरी एक अहम किताब लिखी है आपकी रूहानी तौर पर बढ़ने में मदद के लिए, मैं इसे आपको बिल्कुल मुफ्त भेजना चाहता हूँ। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमें बताएं, हम आपको एक हार्ड कॉपी बिल्कुल मुफ्त भेजेंगे। बढ़ते रहें, रब के लिए जीते रहें, खुदा आपको खुश रखे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपने अभी पादी दोयन के साथ दुआ मांगी है तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन फैसला किया है और हम आपके लिए बहुत पुरजोश हैं। जैसा कि पादरी ने कहा कि हम आपको इनकी किताब की मुफ्त कॉपियाँ भेजना पसंद करेंगे। आपकी नई ज़िंदगी walkinbyfaith.tv पर लॉग इन करें, हम आपको मेल करेंगे। आप इसे फौरी तौर पर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस ऐप पर तलाश कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है और आपके लिए एक बेहतरीन वसीला है। वॉक इन बाय फेथ खुदा के कलाम की सच्चाई के साथ पूरी दुनिया की जिंदगी को बदल रहा है। जब आप खुदा की बादशाही में बीज बोने का इंतखाब करते हैं तो वो पैसा आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि उससे आने वाली बरकत अबद तक आपके साथ रहेगी। अगर आप हमारे से शराकतदार बनना चाहते हैं तो हमारे पास 3 आसान तरीके हैं जो आप देख सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं WBF के 1.88.364 पर टेक्स्ट करें या walkingbyfaith.tv/give पर विजिट करें, या आप हमारी ऐप पर दिए गए आइकन को क्लिक कर सकते हैं। हम आपसे राब्ता कायम करना पसंद करेंगे। वॉक इन बाय फेथ पर हम दुआ की ताकत पर यकीन रखते हैं। हमारे पास लोग ठहरे हैं आपके साथ दुआ करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी दुआओं की दरख्वास्त भेजने के लिए अपने स्क्रीन पर दिए कोड को स्कैन करें या आज ही किसी से बात करने के लिए या walkinbyfaith.tv पर विजिट करें। आज देखने के लिए शुक्रिया। खुश रहें।